ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਰੋਫੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਰੋਫੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ, ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਟਰੋਫੀਜ਼ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, PNB ਮੈਟਲਾਈਫ ਹੋਵੇ, ਸਾਨਵੀ ਰਹਿਲਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਹੋਣ, ਰਨਰ ਅਪ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ, ਅਨੇਕਾਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੰਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੰਗਸਟਰ है, यंग लड़की है, वो उड़ीक रही है। वो 8 साल हो गए खेलते हुए। मैंने खेलना सिर्फ फिटनेस के पर्पस से स्टार्ट करा था अपने भाई को देख के, बट काफ़ी अच्छा लगा खेल के, तो धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और अब इंटरनेशनल खेल रही हूँ। काफ़ी एक्सपेंसिव गेम है, हमारे गेम के शूज़, रैकेट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ट्रैवलिंग अलग, तो उस करके फाइनेंशियली जो ऑब्स्टेकल है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कोई सपोर्ट एज सच नहीं है। अच्छे एक प्रोफेशनल रैकेट की कॉस्ट क्या है जो मैच के लिए यूज़ होता है? 18 to 20,000 MRP होती है उसकी, एक रैकेट की। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੋਫੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਰੋਫੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਰੋਫੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਤੇ 358 ਨੰਬਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ, ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਟਰੋਫੀਜ਼ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨਿਆ ਰਲਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, PNB ਮੈਟਲਾਈਫ ਹੋਵੇ, ਸਾਨਵੀ ਰਹਿਲਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਹੋਣ, ਰਨਰ ਅਪ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ, ਅਨੇਕਾਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਿਆ ਰਹਿਲਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਵੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੰਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ, ਯੰਗ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮਾਨਿਆ ਰਲਨ। ਮਾਨਿਆ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ PTC। थैंक यू। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ? मेरे को 8 साल हो गए खेलते हुए। मैंने खेलना सिर्फ फिटनेस के पर्पस से स्टार्ट करा था अपने भाई को देख के, बट काफ़ी अच्छा लगा खेल के, तो धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और अब इंटरनेशनल खेल रही हूँ। एक हॉबी और एक प्रोफेशनलिज्म में काफ़ी फ़र्क होता है। तो स्टार्टिंग ये एज ए हॉबी शुरू हुआ, तो देन जब ये प्रोफेशनलिज्म में कन्वर्ट होता गया तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग वो जर्नी की कैसे हुई है, डिटेल में उसमें बारे में बताएं। तो स्टार्टिंग एज अ हॉबी हुआ क्योंकि सिर्फ फिटनेस पर्पस के लिए, बट धीरे धीरे जैसे जब टूर्नामेंट में जीती, पहले स्टार्टिंग में मैं जब डिस्ट्रिक्ट जीती थी तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि हाँ जलंधर में मैं सबसे अच्छा खेलती हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद इस चीज़ का एहसास कब हुआ आपको? जब डिस्ट्रिक्ट जीती मैं। अच्छा, तो फिर मेरे को था कि हाँ जलंधर में सबसे अच्छा खेलती हूँ मैं।
फिर उसके बाद जब स्टेट खेला तो स्टेट में जब पहली स्टेट थी तब स्टार्टिंग का फर्स्ट राउंड ही हार गई थी मैं। अच्छा। तो काफ़ी सैड हुआ, बट फिर धीरे धीरे उसके बाद जब स्टेट जीतने लग गई तो था कि हाँ पंजाब में सबसे अच्छा खेल रही हूँ। और अभी रिसेंटली नेशनल्स में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होने लग गई है, उसमें भी गोल्ड आया मेरा। अच्छा। तो काफ़ी अच्छी मोटिवेशन मिली उस करके कि हाँ अब इंटरनेशनल के लिए भी सिलेक्ट होना है। तो ट्रायल्स अभी रिसेंटली हुए थे दिल्ली में, तो वहाँ पे मैं मिक्स डबल्स और डबल्स दोनों में सिलेक्ट हो गई थी इंटरनेशनल के तो लिए। जब भी आपके फर्दर जर्मन में जो टूर्नामेंट होने वाला उसमें आपकी सिलेक्शन हुई है? हाँ जी, मिक्स डबल्स और डबल्स दोनों में। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी बात समझना चाहूँगा कि बैडमिंटन का ऐसा क्रेज़ है जलंधर में, या किस तरीके से? मतलब कि आपने बताया ना कि सबसे पहले आप ही एक यंगस्टर हैं, फीमेल खास करके, जो आज इस मुकाम पे इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर जलंधर की बात करी जाए तो हाँ काफ़ी बैडमिंटन का है। जो हमारे सेक्रेटरी है बैडमिंटन के जलंधर के डीबीए के रितिन खन्ना सर, वो काफ़ी प्रमोट करते हैं गेम को। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हंसराज स्टेडियम जहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट्स होती है वो भी बहुत सुंदर हो गया है। डे बाय डे इम्प्रूवमेंट भी बहुत हुई है उसमें। तो वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और जैसे अभी हैदराबाद जीती थी रैंकिंग में, तो उन रितिन खन्ना सर ने और डीसी सर ने मेरे को ऑनर भी करा था। तो जलंधर में तो काफ़ी क्रेज़ है बैडमिंटन का। प्रैक्टिस अभी कहाँ पे चल रही है आपकी? प्रैक्टिस मैं द्वाबा कॉलेज में है, रत्ती बैडमिंटन एकेडमी, उधर करती हूँ। ये रति जी वही हैं कि जो पहले भी इंटरनेशनली खेल चुके हैं? सचिन रत्ती सर है उनका नाम। वो पहले भी इंटरनेशनल खेल चुके हैं। वो इंडिया के लिए इंटरनेशनल में भी मेडल लेके आए हैं। मैंने तो अभी बहुत कर रहे हो, क्योंकि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, एक लाइफ अचीवमेंट एक आप कह सकते हैं। बट अभी बात हो रही थी अपनी, तो जब इंटरव्यू नहीं शुरू हुआ था, कि कुछ 2-4 ऑब्स्टेकल्स हैं, थोड़ा उनके बारे में डिटेल में बात करें कि अभी गेम के अलावा कोई और कि गेम के अंदर ही ऑब्स्टेकल्स अभी आ रहे हैं। जैसे गेम बैडमिंटन हो या फिर कोई भी हो तो काफ़ी एक्सपेंसिव गेम है। हमारे गेम के शूज़ रैकेट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ट्रैवलिंग अलग। तो उस करके फाइनेंशियली जो ऑब्स्टेकल है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कोई सपोर्ट एज सच नहीं है। बस अभी जैसे नेशनल गेम्स जीते थे तो वो क्राइटेरिया में जो था पंजाब के, तो वो 2 लाख मिले। और डीसी सर और रितिन खन्ना सर ने जो हैदराबाद जीती थी वो 31,000 दिए थे। उसके अलावा एज सच कोई सपोर्ट फाइनेंशियली बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगा कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं इसमें, रैकेट्स हैं, खास करके आपकी शटल्स हैं, बहुत एक्सपेंसिव, और प्रैक्टिस के लिए अलग से रैकेट चाहिए, मैच के लिए अलग से चाहिए। और सबसे एक बड़ी चीज़ आती है कि जब आपने आउट ऑफ द स्टेट जाना है टूर्नामेंट के लिए, तो जो वो एक्सपेंस है उसको कैसे मैनेज करते हैं? इतने के लिए मिलके सफिशिएंट फंड्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ होता है, या एसोसिएशन की तरफ से कुछ मिलता है? जैसे जो हमारी नेशनल चैम्पियनशिप होती है उसमें वो देते हैं थोड़ा सा जो भी होता है कैश वगैरह, पर वो सिर्फ ट्रेन के, अगर ट्रेन से ट्रैवल करना है उसके लिए देते हैं। तो पर जैसे ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो बहुत दिन लग जाते हैं। तो हम सब बच्चे ही फ़्लाइट प्रेफर करते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं फ्लाइट में है भी मैंडेट है, क्योंकि आपने वेरी नेक्स्ट स्टेज आ गया, 2-3 दिन में आगे हमने मैच भी खेलना है, उसके लिए स्टेमिना भी चाहिए। क्योंकि ट्रेन में बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है, तो फ़्लाइट में प्रेफर करते हैं। फ़्लाइट अगर ऑन स्पॉट कराओ या पहले भी कराओ, कई बार काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो उस चीज़ का एक्सपेंस का कुछ भी कोई भी नहीं देता। और जो हमारे जो इक्विपमेंट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। अच्छा, एक प्रोफेशनल रैकेट की कॉस्ट क्या है जो मैच के लिए यूज़ होता है? 18 to 20,000 MRP होती है उसकी, एक रैकेट की। एक रैकेट की? तो ये चलता कितनी देर है? जैसे उसकी गटिंग्स वगैरह टूट जाती है, उसको भी कराना, वो भी 500 अलग से एक टाइम गटिंग के। तो रैकेट भी बीच में टूट जाते हैं, तो उसके लिए भी नेक्स्ट और रैकेट, और एक रैकेट के साथ आप जा भी नहीं सकते हो टूर्नामेंट, क्या पता बीच में बैकअप चाहिए आपको। तो जो जैसे कोई स्पॉन्सरशिप्स वगैरह होती है तो वो भी नहीं है कोई मेरे को अभी। मतलब कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को compete करने के लिए ये बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो एक्सपेंस है अभी आज की डेट में, जो एक बड़ा ऑब्स्टैकल बना हुआ है, आप बता रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जलंधर स्पोर्ट्स हब है, आपको भी पता, आप देखते ही हैं,
किसी ने कभी अप्रोच नहीं किया या किसी कंपनी ने स्पॉन्सरशिप के लिए? ऑब्वियस है कि आप जब कल को आप खेलोगे, आपके कई मैच भी हैं जो ब्रॉडकास्ट भी हुए हैं, तो ऑब्वियस है कि उनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग तो होगी। तो इस लिहाज से कभी किसी ने अप्रोच किया नहीं, या आपने किसी से अप्रोच किया हो कि हाँ मेरे को थोड़ी सी आप हेल्प करो, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो टैग भी लग चुका हुआ है इंडिया का? नहीं, एज सच ऐसे किसी ने कोई भी कभी खुद नहीं बोला कि हम स्पॉन्सर करते हैं, फिर ऐसा कुछ कभी भी नहीं हुआ। और जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जो बैडमिंटन की है या फिर कोई बैंक्स वगैरह हैं, वो साउथ वाले बच्चों को काफ़ी जल्दी स्पॉन्सर कर देते हैं। इसमें क्या रीज़न है, ये लॉजिक क्या है इसमें? इसका लॉजिक पता नहीं मेरे को, बट लाइक साउथ, क्योंकि जो भी अभी तक मेन इंटरनेशनल प्लेयर्स है जो बड़े बड़े हैं सारे, पीवी सिंधु, एच.एस. प्रणॉय, साइना नेहवाल, वो सारे साउथ साइड को बिलोंग करते हैं। तो मे बी वो रीज़न है कि पता नहीं, बट साउथ तो वाले ये भी लगता है कि आपकी उनकी जो स्टेट है उन्हें ज़्यादा और बकअप भी करती है, बूस्ट भी करती है? होता होगा, प्रॉबेबली होता होगा, क्योंकि जैसे उनको, मेरी जो कई फ्रेंड्स हैं उनको काफ़ी बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर गो स्पोर्ट्स या फिर कोई भी ये आउट ऑफ कंपनी, स्टेट है, ये आउट ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं जो आपके फ्रेंड थे? जो साउथ साइड के हैं, ओके। तो उनको ये बैंक से या फिर कोई भी कंपनी या फिर योनिक्स जो है मेन बैडमिंटन का, उनसे स्पॉन्सर्ड है वो ऑलरेडी। तो हमें अभी तक ऐसा कुछ स्पॉन्सरशिप का नहीं बोला किसी आपको लगता है कि जो हमारा पंजाब स्टेट है, इसके डिपार्टमेंट वो बहुत कह रहे हैं कि हम यंगस्टर को बहुत बूस्ट कर रहे हैं, चाहे जिस चीज़ के लिए पाथ अगर चाहिए, चाहे खास करके प्रैक्टिस भी चाहिए, इंडोर आउटडोर किसी चीज़ के हम ऑलवेज़ रेडी हैं। आपका एक्सपीरियंस किस तरीके से है, क्योंकि आप 8-9-10 साल से हैं, कि ये अचीवमेंट भी है, तो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने आके अप्रोच किया हो, पूछा होगी यार अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें बताएं, हम आपको बैकअप करते हैं? मेरे को बस अभी रिसेंट जब अभी मैं सिलेक्ट हुई थी तो डीसी सर का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे को अप्रोच करना, बट लाइक उनके अलावा कोई सपोर्ट नहीं मिली अभी तक। बेसिक रिक्वायरमेंट किस चीज़ की लगती है कि मान्या को कि अगर ये सपोर्ट मिल जाए तो प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो, दिन रात की मेहनत है, सारे मेडल्स ही मेडल्स हैं, ट्रॉफीज़ हैं, और कितना अच्छा हो सकता है? बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है मान्या की? बेसिक रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली मनी, बिकॉज अगर वो होएगी तो मैं और भी चीज़ें जो इक्विपमेंट्स मेरे को लेने हैं या फिर कुछ ट्रैवलिंग इजी हो जाएगा, इतना ज़्यादा बर्डन पेरेंट्स के ऊपर नहीं आएगा। फ्यूचर आप इसमें देख रहे हैं बैडमिंटन में? मेरा एक सवाल है कि ऑन गोइंग फ्यूचर के लिए आपके सारे और बहुत सारे आपके जैसे प्लेयर होंगे जो अपना फ्यूचर देखते हैं स्पोर्ट्स में, आप किस तरीके से समझते हैं कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए कि प्लेयर सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस और अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ही ध्यान दें? अगर जैसे मेरे पेपर्स थे स्कूल में, तो ऑब्वियसली बोर्ड्स तो देने ज़रूरी है, बट जैसे अभी वो मेरे टूर्नामेंट और बोर्ड्स क्लैश हो रहे हैं आपस में, तो अब सीबीएसई का शायद से ये नॉर्म है कि आप बोर्ड्स बाद में दे सकते हो, तो थोड़ा स्टडी प्रेशर कम होना चाहिए। स्टडी प्रेशर है, और एज वेल एज साथ में जो इक्विपमेंट्स का और दूसरी चीज़ों का? हाँ, वो भी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लेनी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो सपोर्ट चाहिए कि तो कोई। मम्मा पापा ने कभी बोला नहीं कि लास्ट टाइम तेरे को अभी शटल्स का नया बॉक्स लेके दिया, तुम दोबारा फिर मांग रहे हो हमारे से? नहीं, ऐसे नहीं है, अगर मेरे को कुछ भी चाहिए होता है मैं बोलती हूँ पापा उसी टाइम लेके आते तो कहीं ना कहीं खुद लगता है कि हाँ यार इतनी थोड़ी बहुत फंड्स इतने मेरे पास बैकअप के लिए हों ताकि मम्मा पापा को बोलना ना पड़े, वो खुद ही मैनेज, अभी रहता है इस तरीके का? हाँ, ये होता है, क्योंकि अब सारा प्रेशर मैं नहीं चाहती कि पेरेंट्स के ऊपर आए, तो अगर खुद गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होएगी ना, अगर डायरेक्ट मैं चीज़ें बिना किसी को बोले ले पाऊँगी, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अगर आपकी बात सुन रहा हो तो आप क्या अपील करना चाहते हैं जो पंजाब का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है? कि मेन तो प्रॉब्लम फाइनेंशियल सपोर्ट वाली है, तो वो अगर जितना पॉसिबल हो वो दिया जाए, क्योंकि अगर हम अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करें तो एक साल का 10 लाख सिर्फ खेलने का लग जाता है आराम से। अच्छा। क्योंकि एक टूर्नामेंट ही अप्रॉक्सीमेटली 60-70,000 तो बाहर, अगर स्टेट से बाहर जाना है तो लग जाता है। उसके अलावा जो पंजाब के अंदर टूर्नामेंट होते हैं, इक्विपमेंट, शटल, तो ट्रैवलिंग, सबका मिला के इससे ज़्यादा ही होता होगा, कम तो नहीं होता होगा। तो ये एक मतलब कि आपको एक स्पोर्ट चाहिए अलग से, कि चाहे वो ट्रैवल अलाउंस हो, चाहे आपकी गेम्स के साथ में हो, कोई प्रॉपर एक स्टाइपेंड हो जाए कि जितनी देर तक आप खेल रहे हो। यही मेन है प्रॉब्लम, क्योंकि अगर
अगर कोई स्पॉन्सरशिप मिल रहा है तो इक्विपमेंट्स के जो खर्चे है वो नहीं होएंगे, अगर ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है तो वो नहीं होएगा, तो कोई भी अगर एक अच्छी चीज़ या फिर कोई बैंक स्पॉन्सर कर देता है तो वो मंथली, तो फिर वो प्रॉब्लम्स नहीं होएगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक। पीटीसी न्यूज़ की तरफ से आप अच्छा खेलो और इंडिया का नाम रिप्रेजेंट करो। थैंक यू। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮਾਨਿਆ ਰਲਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅੰਡਰ 19 ਦੀਆਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਐਸੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਗੇਮ ਲੜਕੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਝਾਰੂ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਣ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੇਮ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਨਿਆ ਰਲਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਲੰਧਰ।